So yesterday we have started with the Solana account model, and right in Solana everything is account, wallet account, program account. In case of program account, the program account has two types in it. First one only stores the executable code or logic. The second one stores the data part. So that is a program account. Solana blockchain में तुम जिस किसी भी चीज से इंटरेक्ट करोगे दैट इज एन अकाउंट. ठीक है. So in lab 3, in the second lab on last Thursday, हम लोगों ने Solana DevNet try out किया. Yes. In Solana DevNet we created an account, but while after creating that account, when we were sending SOL tokens to that account, we used -- allow unfunded recipient. अब वो फ्लैग हम क्यों पास कर रहे थे? क्योंकि अगर तुमने वो फ्लैग पास नहीं किया, so that account is not yet existing on the Solana blockchain. In order for an account to exist on Solana, it must have some Solana in it or some SOL tokens in it. So in order to bypass that, you pass that flag -- allow unfunded recipient. ठीक है. तुम जब वो फ्लैग पास करते हो तो जो Solana CLI है that informs them that this is an account which does not have any SOL tokens, still the transfer should go through. अगर तुमने वो फ्लैग को हटा के Solana ट्रांसफर किया, तुम्हारा ट्रांसफर फेल हो. सेकेंडली ये चीज सबको आना चाहिए. द 5 fields every account carries. In Solana, it may be a wallet account, a program account, a data account, or any kind of account, or token program account or system account. The account can be of any type, but all the accounts have these 5 fields. First is Lamport, second is data, owner, executable, and rent depot. Lamport stores the balance of that account. One SOL is equal to 10⁻⁹ Lamports. And rent epoch, in order for your account to store data on the Solana blockchain, as long as it exists, you are supposed to pay a rent. Why is that? Because imagine if there is no rent feature. In that case, anybody will join the Solana network, will create an account, and will post anything and everything on the Solana blockchain. So after a certain point of time, the data will start bloating. So that will in turn slow the network. In order to discourage that behavior, there is a feature of rent. Now this rent epoch field does not exist. This field exists, but it is not in use. जब Solana blockchain स्टार्ट हुआ था तब रेंट इपॉक यूज होता था, क्योंकि हर इपॉक के बाद you were charged a rent in SOL token for your data to be persisted on the blockchain. The account can be of any type. That each and every kind of account on Solana has these 5 fields. ये तुमको याद रहना ही चाहिए. That's what. There are 4 kinds of account. First is the wallet account. While doing the Solana lab, when you perform the transfer, Solana transfer with the recipient address. So that recipient address was the wallet account. Second is the program account. Program account, since we are coming from the Ethereum background, so on Ethereum, programs are smart contracts. On Ethereum, programs are called as smart contracts. On Solana, they are called as program accounts. Whereas in Ethereum, the smart contract stores the logic as well as the data. But in Solana, logic is stored in a different contract and data is stored in a different contract. Third, we have program-owned data account. Same. First, we have the program account, then program-owned data account. In this account, all the data of that program or smart contract is stored. At last, sysware and native accounts. So these are system program accounts such as BPF loader. Then there is an account which has all ones in it. So these are, imagine them to be whenever you're booting up your system, right? When you start up the laptop or when you shut down your laptop, that time it will give you a pop-up. Reopen all the tabs while logging in. If you check that, then that information before shutting down your laptop is stored inside a boot program. And when you restart your laptop, so the bootloader comes up, and the bootloader informs that while shutting down the laptop, Akansha was using application Chrome, Safari, or XYZ things. Now we have to launch those as well. Similarly, in Solana we have system variable and native accounts.
This I have already told you all. Solana separates code from state. Code अलग रहेगा, डेटा अलग रहेगा. What is invariance? Invariance मतलब जो अकाउंट है वो क्या क्या कर सकता है, right? If I own a business, I can transfer the funds. I can apply for loan. Similarly, in case of Solana, if there's an owner account, only the owner program may modify an account status. Account structure के 5 फील्ड है. Second field is data. If you want to modify that data, वो डेटा कौन मॉडिफाई कर सकता है? जो उस अकाउंट का ओनर है वही मॉडिफाई कर सकता है. अब तुम्हारा नोटबुक है, राइट? तुम्हारे नोटबुक में अभी के लिए तो कोई भी लिख सकता है तुम्हारा नोटबुक लेकर, बट अगर तुमने कंडीशन डाला, तुम्हारे नोटबुक को तुमने लॉक लगाया, ठीक है, किसी लॉकर में रखा, वो लॉकर का चाबी तुम्हारे पास है, सो ओनली यू कैन राइट. सिमिलरली द डेटा पार्ट ऑफ योर अकाउंट कैन बी रिटन ओनली बाय द ओनर ऑफ दैट अकाउंट. ओनली द ओनर प्रोग्राम में डेबिट लैम्प कोर्स. डेबिट लैम्प कोर्स का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने थर्सडे वाले लैब में किया था, वी ट्रांसफर सोलाना फ्रॉम अकाउंट 1 टू अकाउंट 2. इन दैट केस जो डेबिट है, जो ओनर है वही 100 टोकन्स भेज सकता है. यू कैन नॉट सेंड टोकन्स फ्रॉम समवन एल्सेस अकाउंट. ओनरशिप में भी रीअसाइन ओनली व्हेन द डेटा इज जीरो है. अब जो डेटा फील्ड है, यू क्रिएटेड एन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट एक्स. दैट अकाउंट एक्स नाउ हैज डेटा whose length is say 50 bytes. You want to transfer that account X to O. You cannot directly transfer that. वो कब ट्रांसफर होगा? जब उसका डेटा 0 हो. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए कि डेटा 0 कब होगा, कैसे कर सकते हैं. अकाउंट स्ट्रक्चर में जो डेटा फील्ड है उसका साइज फिक्स है. इट कैन नॉट आउटग्रो 10 मेगाबाइट. 10 MB से ज़्यादा नहीं होगा. एंड जो आपका डेटा साइज है, डिपेंडिंग ऑन दैट डेटा साइज यू पे अ रेंट फॉर द डेटा टू बी परसिस्टेड ऑन द ब्लॉकचेन. इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर ब्लॉकचेन ओपन स्टोरेज हो गया तो क्या होगा? कोई भी आएगा, ज्वाइन करेगा, मूवी स्टोर करेगा, जितने भी उनका डेटा है जो लैपटॉप पे है, राइट? जैसे मान लो तुम्हारा गूगल ड्राइव का 15 GB फुल हो गया, तुम बैकअप लोगे, ब्लॉकचेन पे स्टोर करोगे. अगर इथीरियम पे स्टोर करने जाओगे तो ट्रांजैक्शन फी ज़्यादा है. इथीरियम ट्रांजैक्शन फी से तुमको ब्लॉक करेगा. अगर सोलाना पे स्टोर करने जाओगे तो सोलाना तुमको क्या बोलेगा? यू हैव टू पे द रेंट डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज. तुम्हारा डेटा जितना बड़ा हो, डेटा का साइज जितना बड़ा होगा, उस हिसाब से रेंट कैलकुलेट होगा. अब रेंट का मतलब क्या है? जो 100 टोकन्स है वो लॉक हो जाएंगे. एंड व्हेन यू डिलीट दैट डेटा, देन दोस लॉक टोकन्स विल बी रिलीज्ड. अब एक्चुअल में रेंट क्यों है? रेंट क्यों है एंड उसके अराउंड व्हाट आर द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंस. रेंट एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ स्टोरेज. Why storing bytes on Solana requires a refundable deposit and how to compute it? अब हमने तो बहुत बोला that whenever an account is created, it has an associated field called as data, and when we want to persist that data on the blockchain, we have to pay a rent. But next question ये आना चाहिए, how do we calculate that? इसको calculate कैसे करेंगे हम? कुछ तो formula रहेगा, right? So आज हम लोग वो देखेंगे. First, the problem rent was designed to solve. Validators keep live accounts in memory. If you want, खुद का एग्जाम्पल ले लो. अगर तुम्हें इस लेक्चर के बाद घर जाना, तो जैसे लेक्चर खत्म होने आएगा, राइट, लास्ट के 5-10 मिनट में नोटबुक क्लोज होगा, बैग में जाएगा, पेन है बैग में जाएगा, बॉटल है सब बैग में जाएगा. जैसे लेक्चर खत्म हुआ गायब, राइट. सिमिलरली जो लाइव अकाउंट्स है, अगर सोलाना को फास्ट रहना है तो जो अकाउंट्स इन यूज है फ्रीक्वेंटली, दोज अकाउंट्स मस्ट बी इन मेमोरी. अब मेमोरी का जो साइज है दैट इज लिमिटेड, राइट. मेमोरी कैन नॉट बी अनबाउंडेड. सो एट अ टाइम सोलाना कैन नॉट स्टोर 1 lakh और 1 billion अकाउंट्स इन द मेमोरी, और वैलिडेटर्स कैन नॉट स्टोर दैट. तो उसको लिमिट कैसे करें? उसको लिमिट करने के लिए रेंट वाला मैकेनिज्म, जो फी देगा वही मेमोरी में रहेगा.
फास्ट एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द अकाउंट सेट बीइंग चीपली एड्रेसेबल. चीपली एड्रेसेबल मतलब मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. जैसे लेक्चर खत्म हुआ, बैग भरे भाग गए. अगर लेक्चर खत्म होने के बाद तुमने बैग भरना स्टार्ट किया तो तुमको लेट हो. लेक्चर खत्म हो रहा है और तुमने बैग भरना स्टार्ट किया, दिन उसके बाद तुम घर चले तो फास्ट हो. तो जो लाइव अकाउंट्स है वो मेमोरी में रहेंगे, और जो लाइव अकाउंट्स मेमोरी में रहेंगे दोज आर, आई मीन यू कैन एड्रेस देम चीपली if you can query them efficiently. Obviously your system will be fast. Second is free storage invites state bloat. bloating term के बारे में सुना है? bloating मतलब उसका एक बायोलॉजिकल एग्जांपल देता हूँ. मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमको मिला बहुत टाइम के बाद. जब फर्स्ट टाइम तुमको मिला था तब अच्छा खासा शेक में था, जिम वगैरह जा रहा था, और तुमको मिला वो 6 महीने के बाद. तो जिसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर्ड चीज़ें हो गई, तो मोटा हो गया. तो वो ये नहीं बोलेगा कि मतलब नहीं, अरे मैं मोटा हो गया, और यार आप ब्लोटिंग हो गई. तो स्टेट ब्लोट होना मतलब क्या कि स्टेट में अनवांटेड डेटा इतना भर दिया है तुमने कि जो एक्चुअल डेटा चाहिए हमें उसको क्वेरी करने के लिए टाइम जा रहा है. अगर रेंट वाला फीचर हम लोगों ने निकाल दिया तो कोई भी आएगा कुछ भी स्टोर करेगा. तो ऑब्वियसली जो स्टेट ब्लोट होता जाएगा ना, राइट. तो इसीलिए रेंट वाला मैकेनिज्म है. फर्स्ट जो लाइव अकाउंट्स है उनको मेमोरी में रखने के लिए. सेकेंड टू अवॉइड स्टेट ब्लोटिंग. थर्ड रेंट इंटरनलाइजेस दैट कॉस्ट. मतलब इफ आई वांट टू स्टोर 10 बाइट्स ऑफ डेटा, आई हैव टू पे रेंट इक्वल टू 10 बाइट्स ऑफ डेटा. तो इस केस में जो फ्री सर्विस उठाना चाहते हैं वो लोग आके सिस्टम को क्लॉग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें 1 बाइट ऑफ डेटा भी स्टोर करना है तुमको रेंट पे करना पड़ेगा. अब तुम कहोगे सर ये रेंट कहाँ जा रहा है? अगर हमने रेंट पे किया तो वो हमको वापस मिलेगा क्या? यस. लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था whenever you delete the data, whatever the rent you have paid, that is refunded because you are freeing up space. अब ये जो है computing the rent exempt minimum. What is the area of a circle? Formula क्या है? Area of a circle 2 pi. Circumference होशियार है तुम लोग. तो if you want to calculate the minimum balance for any type of account, तुमको कैलकुलेट करना है कि कितना सॉल एज अ रेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा. दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. अकाउंट स्टोरेज ओवरहेड प्लस डेटा लेंथ मल्टीप्लाई दैट विथ लैम्प पोर्ट्स पर बाइट ईयर मल्टीप्लाई दैट विथ एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड. अब अकाउंट स्टोरेज ओवरहेड कितना है? 128 बाइट्स. अकाउंट स्टोरेज ओवरहेड इज 128 बाइट्स. फिर उसके बाद लैम्प पोर्ट्स पर बाइट पर ईयर ये कितना है? 3480. ये जो वैल्यू है दिस इज नेटवर्क कांस्टेंट. बट इवन दो इट इज नेटवर्क कांस्टेंट, व्हेनेवर यू विल बी कैलकुलेटिंग द मिनिमम बैलेंस, जब भी मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो इसका हार्ड कोडेड वैल्यू यूज नहीं करनी. तो 3480 हार्ड कोडेड यूज नहीं करना. दिस वैल्यू कैन बी फेच्ड बाय कॉलिंग दिस फंक्शन गेट मिनिमम बैलेंस फॉर रेंट एग्जेम्पशन पासिंग इन द स्पेस मतलब कितना बाइट्स ऑफ डेटा. ठीक है. जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये वो 3480 तुमको नेटवर्क कांस्टेंट दिखा रहा है. आज 3480 है, 1 महीने के बाद शायद 4000 हो, 2 महीने के बाद 5000 हो, राइट. सो नेवर यूज हार्ड कोडेड वैल्यूज. एंड देन दिस इज द एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड व्हिच इज 2 इयर्स. अब इसका एग्जांपल क्या है? डेटा लेंथ इज 165 बाइट्स. फॉर्मूला क्या है? अकाउंट स्टोरेज ओवरहेड प्लस डेटा लेंथ 128 प्लस 165, राइट. That is multiplied with lamp ports per byte year. Lamp ports per byte year कितना है? 3480 यहाँ पे आ गया. That is multiplied with exemption threshold. Exemption threshold कितना है हमारा? 2 years. उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया? 2039280 लैम्प पोर्ट्स. अब 1 sol इक्वल टू हाउ मेनी लैम्प पोर्ट्स? 1 sol इक्वल टू 10:9 बराबर. जो
1 sol equal to 10⁻⁹ लैम्प पोर्ट्स. ठीक है. अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिला है that is 2039,280 लैम्प पोर्ट्स. So in terms of sol क्या करना पड़ेगा इसको? This is in terms of लैम्प पोर्ट्स. We have to represent this in terms of sol. क्या करना पड़ेगा? Divide by 10. Divide by 10⁻⁹. तो देखो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 जिसके पहले 2 जीरो आ जाए 0.00203928 sol held for as long as the account exists. If you have say if your balance is 0.5 sol, out of this 0.5 sol, this will be paid as rent exempt. That will be locked as long as your account exists. So when you delete your account or close your account, that time this amount will be refunded back to the owner of that account. समझा? समझा? And sheet और एक important चीज है, even though it is a network constant, don't use the hard coded value. Always call this function. Get minimum balance for rent exemption. क्योंकि जब तुम मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पे नेटवर्क कांस्टेंट कितना है वो तुमको उसका डायनेमिक वैल्यू ये फंक्शन ला कर देगा. ठीक है. कितने लोगों को नींद आया? सार्थक, उर्वई, समझा? बट ये भी आया ना. क्वेश्चन ये नहीं है कि समझा या नहीं समझा, क्वेश्चन इज कितने लोगों को नींद आया. ठीक है. और रेंट एग्जेम्प्ट मिनिमम्स फॉर अकाउंट्स यू विल क्रिएट. सो दीज आर द डिफरेंट अकाउंट टाइप्स. वॉलेट और सिस्टम अकाउंट्स. इन केस ऑफ वॉलेट और सिस्टम अकाउंट डेटा लेंथ इज 0 बाइट्स. अब ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे मिनिमम बैलेंस, ये रैंडम नंबर नहीं है, ये पीछे जो फॉर्मूला था तो फॉर्मूला अप्लाई किया देन ये आंसर मिला. दिस इज इन टर्म्स ऑफ लैम्प पोर्ट्स, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सॉकेट. सेकंड इज SQL token build. You want to create new tokens. So for that the data length is 82 bytes. Apply the previous slide formula, we get this much lamp ports, this much sols. Storage cost scales linearly with bytes. जैसे bytes बढ़ेगा वैसे storage cost बढ़ेगा. A protocol that stores 1/200 byte record per user is roughly 0.0023 sol per user. Think this in terms of a structure. Right? You have a structure, struct, say person. It has name, age, and an address. You created a program account, and in that program account, you have added the structure. अब सोलाना का प्रोग्रामिंग जो तुमको ध्यान में रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है. अगर ये स्ट्रक्चर इफ दिस इज टेकिंग 200 बाइट फॉर वन यूजर, जब तुम्हारे प्रोग्राम में 1000 या 1 मिलियन यूजर आ गए तो 1 मिलियन इज मल्टीप्लाइड बाय 200 बाइट्स. सो दैट विल बी 200 मिलियन बाइट्स. वो 200 मिलियन बाइट्स का स्टोरेज कॉस्ट तुमको देना पड़ेगा. एक यूजर के केस में इट इज 0.0023. 100 मिलियन के केस में दैट विल बी 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.0023. तो जो सॉल आएगा वो सिर्फ लॉक होगा ताकि तुम्हारा डेटा परसिस्ट करे बस. इथीरियम में वैसा नहीं. तुमने ट्रांजैक्शन फी पे किया, स्टेट अपडेट हो गया, स्टोर. तो ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है इथीरियम और सोलाना के बीच में. तो यहाँ पे तुम लोगों का काम एज ए डेवलपर क्या है कि जब तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे या प्रोग्राम लिखोगे तो तुमको ये भी सोचना है कि हम लोग जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसका जो डेटा साइज रहेगा
will that impact the economics going forward when the user base increases? In simple terms, यश का बिजनेस है. आज यश is selling से chocolate watch for 100 rupees. He has to take into account जो वहाँ पे काम कर रहा है उसका सैलरी, जहाँ पे उसका स्टॉल है उसका रेंट, देन फिर अंडर द टेबल जो भी सेटलमेंट करना पड़ता है वो सारी चीज़ें, वो सब जाने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना है. तो सिमिलरली तो जब तुम सोलाना में प्रोग्राम लिखोगे तो तुमको ये अकाउंट में लेना है कि जो तुमने लॉजिक लिखा है वो जो लॉजिक है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना डेटा कंज्यूम करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा सॉल्व तुमको लॉक करके रखना पड़ेगा. तो ये एक की डिस्टिंक्शन है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग प्रोग्राम्स इन सोलाना. इथीरियम में क्या तुम एक स्ट्रक्चर लिखते हो उसमें 17 फील्ड लिखते हो. जब तुम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने जाओगे तो जितना स्टोरेज राइट रहेगा वो हिसाब से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगा. तो तुमने ट्रांजैक्शन फी पे किया, डन. सोलाना में वैसे नहीं, तुम ट्रांजैक्शन फी पे तो करोगे बट जैसे डेटा का साइज बढ़ता जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्व दैट मस्ट बी लॉक वो भी बढ़ता जाएगा. समझा? Closing an account returns every lamppost. Imagine this to be, I have my bank account with SBI which has 10,000 rupees balance in it. But SBI का सर्विस मुझे इतना अच्छा लगा, I went and I said I want to close the account. तो जब मैं अकाउंट क्लोज करूँगा तो वो जो 10,000 रुपीज़ है इधर मुझे NEFT फॉर्म भर के देना पड़ेगा कोई दूसरा अकाउंट का, कि जब अकाउंट क्लोज होगा तो इसका बैलेंस दूसरे अकाउंट में आएगा. वैसे ही सोलाना में जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तो जो डिपॉजिट था which was used to persist the data that will be refunded back to the account's owner. अब जो अकाउंट का स्ट्रक्चर है उसमें 5 फील्ड है. क्या क्या है? लैम्पोर्ट्स, डेटा, थर्ड इज ओनर, राइट. तो अकाउंट स्ट्रक्चर में ओनर जो की है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है उस नहीं ओनर जो पब्लिक की है उसके अगेंस्ट दैट एड्रेस विल रिसीव द रिफंड. जैसे एसबीआई के केस में क्या था, मैंने अकाउंट क्लोज किया, जो फॉर्म भर के दिया मैंने, फॉर्म भर के देने के बाद उस फॉर्म में मैंने ये मेंशन किया कि एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करो पैसे. तो एक्सिस बैंक में पैसे आए. सिमिलरली यहाँ पे जो अकाउंट तुम क्लोज कर रहे हो उस अकाउंट के ओनर फील्ड में जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिफंड जाए. अब जीरो द डेटा, द ओनिंग प्रोग्राम क्लियर्स द अकाउंट्स बाइट्स सो नो स्टेल स्टेट कैन बी रीड. पहले डेटा तुम्हारा 20 बाइट्स था, तुमने उसको डिलीट किया 0 बाइट की. अब 20 बाइट्स का मिनिमम बैलेंस हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो जो सॉल्व था वो तुम्हारे लॉक रहेंगे. बट जैसे तुमने डेटा को 0 कर दिया, बाइट 0 हो गया, राइट, तो तुम्हारा मिनिमम बैलेंस शुड बी 0. तो जो भी सॉल्व लॉक था वो ओनर अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा. ड्रेन लैम्पोर्ट, द फुल बैलेंस इंक्लूडिंग द रेंट एग्जाम डिपॉजिट इज ट्रांसफर्ड टू अ डेस्टिनेशन अकाउंट. डेस्टिनेशन अकाउंट कौन है? जो हमारा ओनर है वो है. Deallocate with a zero balance, the account is dropped from the accounts database at the end of the transaction. ठीक है, तुमने सॉल्व लॉक किया तो तुम्हारा अकाउंट डेटाबेस में रहेगा. तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन तुम्हारे अकाउंट के थ्रू होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या वैलिडेटर की मेमोरी में एग्जिस्ट करता है. बट अगर जिस पॉइंट पे तुमने जो रेंट है उसको 0 कर दिया, डेटा 0 कर दिया, तो सोलाना will treat that account as a closed bank account. उसको वहाँ से निकाल दें. कहाँ से? अकाउंट डेटाबेस. Reuse cautiously. The address can be recreated later. This is one of the security loopholes in Solana. जो एड्रेस को तुमने क्लोज किया, that same address can be recreated in the same transaction. मैंने SBI में मेरा बैंक अकाउंट क्लोज किया, वापस जाके ओपन किया. अब तुम बोलोगे लेकिन एसबीआई में तो अकाउंट नंबर दूसरा मिलेगा ना, रिसीव थोड़ी मिलेगा, राइट. तो इस केस में जो अकाउंट नंबर तुमने क्लोज किया है सेम अकाउंट नंबर तुम रीजनरेट कर सकते हो. सो इट्स काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी बग हो गया, राइट. सो हाउ टू हैंडल दैट? एंकर फ्रेमवर्क के बारे में पता है? जैसे हार्ड हैट यूज करते हैं हम लोग, राइट, फॉर इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे फॉर सोलाना देयर इज एंकर फ्रेमवर्क.
तो जब आप एंकर फ्रेमवर्क यूज करोगे एंड एंकर फ्रेमवर्क में when you will call close account, so that time एंकर फ्रेमवर्क अपने आप ही will ensure कि वो अकाउंट वापस रिक्रिएट ना हो. ठीक है. सर अगर किसी ने अकाउंट ओपन किया और फोर्स लॉक किया और वो यूज ही नहीं करता, बहुत टाइम तक यूज नहीं करता, तो अपना नहीं, लॉक भी रहेगा. ऐसे रहेगा. यस, क्योंकि तुम रेंट पे कर रहे हो. लॉक करके छोड़ दिया, उसकी स्टोर नहीं हो रहा, यूज नहीं कर रहे, वैसे ही रहेगा. सर मोस्ट अपने को जब उसका क्वेश्चन को मतलब उससे ही आगे क्वेश्चन आया है, अगर अपन ने वहाँ पे लॉक मतलब जब अपन डेटा वहाँ पे स्टोर पे तभी रेंट पे करना पड़ता है ना. वो क्या बोल दिया अभी कि उसमें डेटा नहीं है, डेटा नहीं है तो लॉक नहीं कर सकते ना अपन. तो वो खुद से ब्लॉक तो कैसे लॉक करेंगे जब डेटा ही नहीं है उसमें. डेटा नहीं है. सबसे पहली बात जो लास्ट थर्सडे को हमने लैब किया था, आईफन अलाउ अनफंडेड रिसिपिएंट, राइट, तो वो सोलाना को कहेगा कि दिस अकाउंट डज नॉट हैव एनी लैम्पोर्ट्स. स्टिल लैम्पोर्ट्स है, हाँ. अगर अकाउंट में है पर डेटा नहीं है, लैम्पोर्ट्स है पर डेटा है नहीं, यूज राइट, नहीं करते, यूज नहीं कर, तो वो रहेगा स्टेटमेंट. तो उसको बंद करके लैम्पोर्ट वापस नहीं दे देते, क्लोज कर सकते हैं ना अकाउंट को. है सिस्टम खुद से नहीं करेगा. तुम्हारे हम सभी लोगों का बैंक अकाउंट एसबीआई में है, राइट. तुम यूज करो मत करो, बैंक विल नेवर क्लोज इट ऑटोमेटिकली. ऑटो क्लोज बैंक करेगा ही नहीं. क्लोज करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा. ठीक है. इनएक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं बैंक में. इनएक्टिव करने के लिए तुमको सोलाना में क्या करना पड़ेगा, जितना बैलेंस है किसी और वॉलेट को भेज दो. ठीक है. अब देखो, SPL token is Solana's equivalent ERC20 token, right? When you want to close this, SPL token close address token account access. जब तुम इसको close करोगे, the Lamports return to the account owner's wallet approximately this much, which is 0.00203928 sol. सर वो दोनों तरफ से जाएंगे ना. आप अपने ऊपर डिपेंड है कौन सा अकाउंट पे लेना है, या फिर अपने को बताना पड़ता है, या वो जिस अकाउंट से आए वही पे रिटर्न. अकाउंट स्ट्रक्चर है. हाँ. अकाउंट स्ट्रक्चर में ओनर की है. हाँ. तो जो ओनर की में जो वैल्यू सेट है उसको जाए. यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम लोग ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कौन से अकाउंट में जाना चाहिए. जो टोकन SPL टोकन है, राइट, इट इज अ टोकन अकाउंट. टोकन अकाउंट के भी सेम 5 फील्ड है, राइट. तो थर्ड फील्ड इज ये ओनर, बराबर. तो जब ओनर कॉल होगा तो उस अकाउंट का उस ओनर फील्ड में जो वैल्यू सेट है दैट फील्ड विल गेट द रिफंड. वो ऑटोमेटिकली जिससे हुआ है उसी में रिवर्ट होगा. और उसमें तो वही तो होगा ना. वो ऑटोमेटिकली होगा, बट कहाँ होगा ये हम लोग स्पेसिफाई नहीं करें. वो कहाँ होगा, ओनर फील्ड में होगा. तू क्या अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है कि ऑटोमेटिकली मैंने पहले क्रिएट किया तो मेरे वॉलेट में आया, बराबर. तू उस अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है. बट अगर तेरा वॉलेट उस टोकन अकाउंट के ओनर में सेट है तो ही तेरे वॉलेट में आएगा. बट अगर उसके ओनर में कुछ दूसरा वॉलेट सेट है तो उसके पास जाएगा. ये मैं लास्ट वाला. Enters close constraint defense against this. कि तुमने एक अकाउंट क्लोज किया, उसे ट्रांजैक्शन में उसको वापस रिक्रिएट किया, तो एंकर फ्रेमवर्क यूज करोगे तो तुमको अलाउ नहीं करेगा करने. So to angle space and एंकर फ्रेमवर्क then we get our research. Just go get done. Clearly our under close with our phones. हम पर with the next पर हम force like this to go. That time the favorite zone. एंकर फ्रेमवर्क का काम क्या है? इट कैरीज अवे द बॉयलर प्लेट कोड फ्रॉम द यूजर. कि अगर तुमको डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं मैन्युअली, अगर तुम एंकर फ्रेमवर्क यूज करोगे तो एंकर विल डू दोस 10 स्टेप्स फॉर यू.
तुम लोग सीधा स्टेप 11 से स्टार्ट करोगे. अब इस केस में क्या है, जब तुम अकाउंट क्लोज करोगे तो देयर आर चांसेस कि तुमने अकाउंट क्लोज किया और विद इन दैट सेम ट्रांजैक्शन तुमने वापस रिक्रिएट किया, तो पहले क्लोज क्यों किया? वरना तो वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए एंकर फ्रेमवर्क already has a feature that will block you from recreating the close account. Rent collection is retired. पहले क्या होता था? पहले हर इपॉक के बाद तुम्हारे वॉलेट अकाउंट का जो डेटा है उसका साइज कैलकुलेट होता था, एंड वो साइज कैलकुलेट होने के बाद रेंट कलेक्ट किया जाता था. रेंट कलेक्शन पहले हर इपॉक के बाद होता था. बट अब क्या है? मिनिमम बैलेंस वाला फॉर्मूला. मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट किया, इतना तो चाहिए ही भाई, लॉक. ये डिफरेंस है रेंट कलेक्शन वर्सेस रेंट एग्जिट. अब तुम डेवनेट और सोलाना CLI ऑलरेडी सब लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, राइट? यू कैन run this on Solana DevNet, Solana account, this account address, or go to Solana DevNet Explorer, pick any account address. जब तुम Solana account address पास करोगे, it will give you the public key, balance, इसका owner कौन है, executables, rent epoch, length. यही है ना हमारा अकाउंट का डेटा स्ट्रक्चर, राइट? then ओनर से पता चले लेंथ इज द डेटा साइज what the CFG okay 165 बाइट्स. अब बैलेंस क्या है? इट मैचेस द रेंट एग्जेम्प्ट मिनिमम फॉर 165 बाइट्स. जो हमने लास्ट टाइम में कैलकुलेट किया था. ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में जब तुम 165 बाइट्स डालोगे, राइट, जो तुमको आंसर आएगा दैट विल बी दिस 2.03928 सॉल्व. Owner कौन है? The SPL token program. So only token program instructions can know this balance. अब जो owner है, ideally the owner should be in a position to move the Solana tokens or the LAMP pods. Correct? Nobody else should be. Length 165 bytes, the fingerprint of an SPL token. ठीक है? And on Thursday, you will run exactly this command against an account you created yourself in practical mode. लास्ट थर्सडे को जो अकाउंट तुमने क्रिएट किया था सोलाना अकाउंट, आज दैट अकाउंट एड्रेस, उनके जो बैलेंस है दिस विल बी नॉन जीरो, एंड दिस बैलेंस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लेंथ. चलो वो फॉर्मूला एक बार तो पिछले वाला स्लाइड शेयर करना क्लासरूम. सो तीन क्या करना है? First is insufficient funds for rent. What it means? Land ports supplied are below the rent exempt minimum. The fix query get minimum balance for rent exemption and fund that. अब ये जो फंक्शन है get minimum balance for rent exemption, it accepts one function argument which is space. Space, right? Space is what? The data length. जब तुम वो डेटा लेंथ इसको पास करोगे तो दिस विल रिटर्न द मिनिमम सॉल्व योर अकाउंट मस्ट हैव इन ऑर्डर फॉर इट टू परसीव द डेटा ऑन द सॉल्व ब्लॉकचेन, राइट? तो जब भी तुमको ये एरर आएगा तो इसका फिक्स क्या है? तुमको इस फंक्शन को कॉल करना, पासिंग इन द डेटा साइज. अकाउंट ऑलरेडी इन यूज, एन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट एट दैट एड्रेस. नहीं Username already exists. Wall. Account data too small. Your struct outgrew the space allocated at creation. जो person struct का एग्जांपल लिया था, person struct का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, एज, एड्रेस आया, तो उसके लिए हम लोगों ने एलोकेट किया था मान लो 1 MB. बट आफ्टर 1 year और 2 year that threshold is crossed. Now it is above 1 MB. तो उस केस में क्या होगा? तुमको ये एरर आएगा, अकाउंट डेटा टू स्मॉल. देन तुमको जो डेटा एलोकेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा. सी लैंग्वेज में मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक था हमको, तुमको सी था कि नहीं हो तो रीएलोकेशन मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड है, बट अभी
हमको और मेमोरी चाहिए, तो सोलाना में यू विल कॉल रीअलोट। तो वो क्या करेगा, नया मेमोरी एलोकेट करेगा एंड वो डेटा को नए मेमोरी में कॉपी करेगा। एक्सटर्नल अकाउंट लैम्पोर्ट स्पेंड, अ प्रोग्राम ट्राई टू डेबिट एन अकाउंट इट डज नॉट ओन and trying to send owns token. In that case, I get this error. Balance silently disappears. Sol went to a token account, not the wallet address. Accidental transfer बोलते हैं इसको कि UPI में आकांक्षा पाटिल डॉट यस बैंक करना था मुझे, बट मैंने आकांक्षा पाटिल डॉट एक्सिस बैंक कर दी। तो इस केस में क्या होगा, पैसे इसे और में चले गए। When a transaction fails, read the program logs before changing any code. Solana logs and the Explorer both show the exact instruction and error that aborted the transaction. शुद्ध भाषा में जब भी एरर आता है तो कंप्यूटर तुमको उसके ताकत में जो भी पॉसिबल है तुमको बताता है वो कि बहन तुम ये गलत कर रही हो, भाई तुम ये गलत करना है। You must have the patience to read that error. It will also give you the fix. What is causing that error? But before that, what we do? We just copy, go to ChatGPT. What that is? Answer दे। Imagine ChatGPT जब बात करने लगेगा तुमसे, क्या बोलेगा? So, what to take away? Sleep. Complete that at home. Write down notes. First is 5 things to remember. Everything is an account. Wallets, programs, and program state share one structure. What that structure is? Lamports, data, owner, executable, rent report. 5 fields. यही पे कौन ध्यान दे? The owner is a program, not a person. Only it may write the data or debit lamports. Debit lamports, only it can send salt tokens. Data length is fixed at creation and cost a refundable rent exempt deposit. Yes, closing an account returns the deposit in full. Account close करोगे, जो भी deposit है वो पूरा वापस आ जाएगा। इस समय में चुपचाप से कुछ तो खाया जाएगा। It's just एकदम धीरे से पास किया। चेक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछता हूँ, शर्वरी इसका आंसर देंगे। Who owns your Sol balance account and why can anyone still send you Sol? बोल सकते। Who owns your Sol balance account and why can anyone still send you Sol? क्वेश्चन क्या है? जो ओनर है वो ओन करता है ना, ये बोलता है मत करो नशे। Second, an account needs 500 bytes of data. What is its rent exempt minimum? क्या तो फॉर्मूला किसी ने लिखा? 165. For storing 165 bytes, it was 2.0398 Sol. Account storage overhead plus data length plus network constant plus account storage overhead. Account storage overhead कितना था? 128 into 5. Account storage had 128 bytes plus data length 500 bytes. You multiply that with network constant 3480. Multiply that with 2. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। and divided by 165. So 165 में कोई लगते सपोज आगे का नहीं लिया तो 3 आता है शायद।
3 into 6. यही अपने को चेंज करना है। Yeah, well, this इस पे क्या है, सिंपल आंसर क्या है, फॉर्मूले में नंबर्स and डालो, कैलकुलेट करो, आ गया आंसर। like ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, यही हम लोग दूसरे जगह पे भी करते थे। अच्छा इसके लिए इतना लगा, उसके लिए इतना लगा, तो इसके लिए इतना ही लगेगा। this one. Maybe I've got this loaded. Let's do just like painting and Why must an account's data be empty before its ownership can be reassigned? What I did it. Why must an account's data be empty before its ownership must be reassigned? That's sure. Example here to what is So wait, we're gonna have to get it. There's picture. data should faster than not. So, give one reason Solana requires transactions to declare their accounts in advance. Exactly. well, I put that so there is state. Can you do that? Then he did what he should have become so I am. What happens to the deposit when a token account is closed? So Here it does. It's 3,000. so quite nice. ये वन रीजन का ऐसा होता है कि सब लोग अपना बनाए इसीलिए It's tell us. It is related to C-level runtime. What is C-level? Executes or Execute transactions parallelly. can Hence, Solana requires transaction to declare their accounts in advance. I think I'll give you 5%. It's the Good. So with that, we have completed. So like, right? So You need to Not you need to. You need to का first lecture. second, thanks first. Sorry, you need second का first lecture. Second lecture. क्योंकि first lecture तो कल हुआ था. Take them with 10 Sir, ये बंद कर